نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 9 سے۔ ابھی تک ہم نے آیت نمبر 8 تک کیا پڑھا کہ اللہ نے 2 قسم کی آیات کا ذکر کیا اور اس کے بعد 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو مان لیں گے وہ اولو الالباب ہیں اور وہ نصیحت اور یاد دہانی قبول کریں گے، اور جو کفر کریں گے، کجی کریں گے، دوزخ کا ایندھن ہے، اور سیدھا راستہ اپنانے والے کیسے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر اور یوم الفرقان کی رودات سنائی ہے۔ آیت نمبر 9 پہ آ جائیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ آیت نمبر 11۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعونیوں کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 12۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے 2 چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اور اس وقت کے قریبی زمانے ہی میں یہ پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اور اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی
जा रही थीं। दोनों लश्करों को देखकर हर शख्स बआसानी मालूम कर सकता था कि दोनों में से कौन अल्लाह की राह में लड़ रहा है। दूसरे ये कि मुसलमान अपनी किल्लत तादाद और बेसरो सामानी के बावजूद कुफ़ार की कसीरुल तादाद और बेहतर असलहा रखने वाली फ़ौज के मुकाबले में जिस तरह कामयाब हुए, इससे साफ मालूम हो गया था कि उनको अल्लाह की ताईद हासिल थी। तीसरे ये कि अल्लाह की गालिब ताकत से गाफिल होकर जो लोग अपने सरो सामान और अपने हामियों की कसरत पर फूले हुए थे, उनके लिए ये वाक़या एक ताज़ियाना था कि अल्लाह किस तरह चंद मुफलिस व कल्लाश गरीबुल वतन महाजरों और मदीने के काश्तकारों की एक मुट्ठी भर जमात के ज़रिए से कुरैश जैसे कबीले को शिकस्त दिलवा सकता है, जो तमाम अरब का सरताज था। आयत नंबर 14 पे आ जाएं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। लोगों के लिए मरग़ूबाते नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, बड़ी खुश आइंद बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के समान हैं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। अब इस आयत में सुजीना यानी मुज़य्यन कर दिया गया है। अल्लाह के हुक्म से कुछ चीज़ें इंसानों के लिए मुज़य्यन कर दी गई हैं, खुशनुमा बना दी गई हैं। उनको अल्लाह क्या कह रहा है? हुब्बुश शहवात, दिल पसंद महबूब चीज़ें जिनकी मोहब्बतें दिल में रची बसी हैं। हुब्बुश शहवात कौन सी हैं और इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है? कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ अन्निसा, औरतें, नंबर 2 औलादें, और नंबर 3 अलकनातीर यानी सोने चांदी के ढेर, माल, कैश, और नंबर 4 निशान ज़दा सवारियाँ। उस दौर में ऊंट और घोड़े सवारियाँ थीं और आला नस्ल के घोड़े फ़ख्र का ज़रिया समझे जाते थे और वो उन घोड़ों को दागते थे। क्यों दागते थे? हर मालदार की अपनी मोहर होती थी। जब उसकी सवारियां निकलती थीं और जब उसके 100 या 150 निशान वाले घोड़े निकलते तो उसकी नमूदो नुमाइश होती कि देखो ये कितना मालदार है। और फिर खैलिल मुसव्वमा का तसव्वुर, मवेशी और खेतियाँ थीं। अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारी फितरत में उनकी अट्रैक्शन रख दी गई है, लेकिन ये आर्जी है, वो अबदी है। जो नेमतें वहाँ पर हैं वो यहाँ की औरतों के मुकाबले में वहाँ की औरतें, यहाँ की औलादों के मुकाबले में वहाँ की औलादें, यहाँ की महफ़िलों के मुकाबले में वहाँ की महफ़िलें। गोया अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये फितरत में इसलिए रखी क्योंकि अल्लाह परखना चाहता है। ये हुब्बु शहवात जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाल दी है, उनके साथ मुसलमान का तरीका क्या होगा? ये सारी की सारी फहरिस्त, ये ख्वाहिशें, इनकी आरज़ू रखना, उनको हासिल करने की तमन्ना रखना और प्लान बनाना, उनको हासिल करने के लिए दौड़ धूप करना या उनको हासिल करना और उनको इस्तेमाल और इंजॉय करना। तो ये पांचों चीज़ें ना तो नाजायज़ हैं, ना मना हैं, ना पसंदीदा हैं, बल्कि जायज़ और हलाल हैं, अलाउड हैं। मगर ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह की बताई हुई हदूद व क़यूद में होंगी तो फिर ये अल्लाह का फ़ज़ल है। एक ताजर अगर हलाल तरीके से कमाता है तो रिज़्क़ हलाल कमाने की वजह से उसका दर्जा अंबिया, शुहदा और स्वालिहीन की सफ़ में होगा। इनकी ख्वाहिश रखें, इस्तेमाल भी करें, लेकिन हासिल अल्लाह की बताई हुई हदूद और हलाल तरीके से किया जाएगा और इसका इस्तेमाल भी हलाल तरीक़ों से किया जाएगा। नमूदो नमाइश, इसराफ, ज़नाकारी, शराब, जुए ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह की बताई हुई लिमिट्स में होगा। हमारे दीन में ना तो तर्के दुनिया है, ना गर्के दुनिया है।
आयत नंबर 15 पे आ जाएं। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है। जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ उन्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होगी। पाकीज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है। अब यहाँ पर मुत्तकी और जन्नती कैसे हैं, उनकी सफ़ात कैसी होती हैं, अब हम आगे आयत नंबर 16 में देखेंगे। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबुन्नार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा और हमें आतिश दोज़ख से बचा ले। यानी राह हक में पूरी इस्तिकामत दिखाने वाले हैं, किसी नुकसान या मुसीबत से हिम्मत नहीं हारते, किसी नाकामी से दिल शिकस्ता नहीं होते, किसी लालच से फिसल नहीं जाते और ऐसी हालत में भी हक का दामन मजबूती के साथ थामे रहते हैं। ये अपने ईमान का ऐलान करते हैं। इनका हाल माजी मुस्तकबिल के साथ रवैया क्या है। हाल में क्या कहते हैं, हम तुझे मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ईमान, इल्म और फर्मा बरदारी नहीं थी तो उसके लिए क्या कहते हैं, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, मुआफ़ी तलब करते हैं और मुस्तकबिल के लिए जहन्नुम की आग से बचने की दुआ करते हैं। आयत नंबर 17 पे आ जाएं। अस्वाबिरीना वस्वादिकीन वलकानितीना वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज हैं, फर्मा बरदार और फैयाज हैं और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़रत की दुआएं मांगा करते हैं। आयत नंबर 18। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं है और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है, उस ज़बरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक़े कोई खुदा नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला की शहादत के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर शहादत फरिश्तों की है, क्योंकि वो कायनात के इंतज़ामी अहलकार हैं और वो बराह रास्त अपने ज़ाती इल्म की बिना पर शहादत दे रहे हैं कि इस सल्तनत में अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता और इसके सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसकी तरफ ज़मीनों आसमान के इंतज़ामी मामलात में वो रुजू करते हों। और उसके बाद मखलूक़ात में से जिन लोगों को भी हक़ाइक़ का थोड़ा या बहुत इल्म हासिल हुआ है, इन सब की इब्तदाए आफरीनश से ही आज तक ये मुतफ़क्का शहादत रही है कि एक ही खुदा इस पूरी कायनात का मालिक व मुदब्बिर है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें कुरान की आयत को सही तौर पर समझने, इस पर अमल करने और इसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन सुम्मा